کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 7 اگست تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے، تو شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور میں موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ گرمی کی شدت میں ہمیں ذرا کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے، اور اگر بات کرنی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آسمان پر جو ہے وہ بادلوں کا راج ہے اور بارش جو ہے وہ کسی بھی لمحے برس سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے لے کر 7 اگست تک وقفے سے جو ہے وہ بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر بات کرنی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو وہ 87% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فضائی آلودگی جو ہے اس میں شہر لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 95 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اگر بات کی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آسمان پر تاحال بادلوں کا راج ہے اور بارش جو ہے وہ کسی بھی لمحے برس سکتی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے لے کر 7 اگست تک وقفے سے جو ہے وہ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے پی ڈی ایم اے نے بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا ہے اور شہریوں کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا کہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، اور کسی بھی ناگوار صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر کے رابطہ کریں۔ اور دوسری جانب طبی ماہرین کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ شدید گرم ہے، اپنا خاص خیال رکھیں اس میں، اور زیادہ سے زیادہ جو مشروبات ہیں ان کا استعمال کریں، کیونکہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ مونسون کی بارشیں جب بھی برستی ہیں بارشوں کے بعد ایک حبس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور گرمی کی جو شدت ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ تب تک وہ موسم ٹھیک ہوتا ہے جب تک بارش برس رہی ہوتی ہے، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ۔ پی آئی سی کے 4 آپریشن تھیٹرز کو مینٹیننس اور ریپیئرنگ کے نام پر بند کر دیا گیا۔ کئی مریضوں کی سرجری نہ ہو سکی، مریضوں کے ساتھ ان کے لاحقین بھی خوار ہو گئے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مزید 4 آپریشن تھیٹرز بند۔ کوئی متبادل انتظام اور پلاننگ بنائے بغیر مینٹیننس اور ریپیئرنگ کے نام پر آپریشن تھیٹرز کو بند کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی آئی سی کے 9 آپریشن تھیٹرز بند پڑے ہیں۔ کسی بھی مریض کی سرجری کے لیے آپریشن لسٹ تک نہیں بن رہی۔ پی آئی سی کے آپریشن تھیٹرز میں روزانہ 12 سے 14 مریضوں کی سرجری ہوتی ہے۔ 1 اگست کو بھی 10 مریضوں کی سرجری ملتوی کر دی گئی۔ مریضوں کی جانب سے بلڈ سمیت تمام انتظامات کر لیے گئے، لیکن سرجری نہ ہوئی۔ سرجری ملتوی ہونے کی وجہ سے بلڈ بوتلیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق تھیٹرز کو بغیر کسی ٹھوس وجوہات کے بند کیا گیا۔ ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر تحسین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 4 آپریشن تھیٹرز بند ہیں، لیکن اسپتال میں 3 آپریشن تھیٹرز آپریشنل ہیں جہاں مریضوں کی سرجری ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ہسپتالوں کی خرابی کے ذمہ دار ڈاکٹرز نہیں بلکہ حکومت ہے۔ ہر نیا آنے والا پرانے ہسپتالوں کی بہتری کی بجائے نئے ہسپتال بنانے کی بات کرتا ہے۔ بولے نئی مردم شماری کے حوالے سے اجلاس میں بلایا گیا تو ضرور شرکت کروں گا۔ دیکھیے محمد بلال کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سروسز اسپتال کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے میڈیکل یونٹ 1 کا افتتاح کیا اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ سروسز اسپتال میں سینئر ڈاکٹر سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ سروسز اسپتال کی حالت دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا۔ ہسپتالوں کی خرابی کے ذمہ دار ڈاکٹرز نہیں بلکہ حکومت ہے۔ ہر نیا آنے والا پرانے ہسپتالوں کی بہتری کی بجائے نئے ہسپتال بنانے کی بات کرتا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر انہیں مردم شماری کے حوالے سے اجلاس میں بلایا گیا تو ضرور شریک ہوں گا۔ جو سروسز ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے، لٹرلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہاسپٹل میں نہ بھیجوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن تھیٹرز کی کنڈیشن تھی، جو وارڈز کی کنڈیشن تھی، وہ باقی ہاسپٹل کی کنڈیشن تھی، وہ بہت بری تھی۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ تو نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے۔ جو بھی ادھر آ کے بیٹھتا ہے کہ جی نئے ہاسپٹل بنا دیں، نئے چیزیں کر دیں،
किसी ने ये नहीं देखना कि जो आपके पास चीज़ मौजूद है उसकी हालत देख लें। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हम हुकूमत चला रहे हैं। सूबे और आवाम की बेहतरी के लिए कोशिशें हैं। अगले चंद हफ्तों में सर्विसेज अस्पताल को बेहतर कर देंगे। 5 या 7 अरब जितने भी लगे हम अगले चंद माह में लगाएंगे। हमारा रोल है कि हम अपने तौर पे जो हिस्सा डाल सकते हैं वो डाल दें। हम 5, 7, 8 अरब जितने पैसे लगेंगे हम अगले चंद माह में वो लगा देंगे। और आपको कि एक चीज़ है, कहने वाली बात है, बट अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो हम आपको अगले हफ्तों में और महीनों में इस हॉस्पिटल को रीवैम्प कर देंगे। दूसरी जानब निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वान वज़ीर आला में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में मियो अस्पताल में सेहत की सहूलतों की बेहतरी और अपग्रेडेशन के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। मियो अस्पताल की ओपीडी, एमरजेंसी और चाइल्ड ब्लॉक्स को दोबारा डिज़ाइन करने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने मियो अस्पताल में नर्सों की तादाद बेड्स के तनासब से पूरी करने की हदायत की। निगरान वज़ीर आला के सर्विस अस्पताल के दौरे के दौरान वार्ड्स की लिफ्ट बंद होने से मैयत स्ट्रेचर पर डालकर लवाहिकीन को इंतजार करना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की देर है कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। महंगाई के हाथों परेशान आवाम सर पकड़ कर बैठ गई है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद किराए भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहर का किराया 200 से 800 रुपए तक बढ़ा दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 5000 से बढ़कर 5800 रुपए हो गया। रावलपिंडी जाने के लिए अब 1900 रुपए अदा करना होंगे। पेशावर का किराया 2000 से 2200 रुपए हो गया। कोयटा का किराया 3500 से बढ़कर 4200 रुपए हो गया। मरी का किराया 2000 से बढ़कर 2200 रुपए हो गया। महंगाई के मारे आवाम चकरा कर रह गए। कहते हैं पता नहीं बात कहां जाकर रुकेगी। किराया कम करें, हमारी सफ़र भी कम हो, और हम बहुत गरीब आदमी हैं। इतनी हमारी तनख्वाही है जितना हम किराए गाड़ियों में किराया दे देते हैं। ये इतना पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता जितना ये लोग किराया बढ़ा देते हैं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें। तनख्वाही बढ़ नहीं रही पाकिस्तान में, माशी हालात बिल्कुल नहीं है और जो है किराए बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मज़दा वालों ने भी किराए बढ़ा दिए। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 30,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 25,000 की बजाय 30,000 रुपए वसूल किया जा रहा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 13,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मजबूर हैं, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो किरायों में इजाफा होगा। गाड़ी फुल हो तो फिर जाके जो है को गुजारा होता है, नहीं तो खर्चा भी नहीं पूरा होता। 500 पे कम करते, 30 पे बढ़ा देते, 20 पे बढ़ा देते। ट्रांसपोर्ट किधर जाएं? ये गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। यहाँ पे मेरे 25 टाइम जाते थे, जहाँ पे अभी 9 टाइम जा रहे हैं। मुसाफिर अलहदा परेशान है, ट्रांसपोर्टर अलग परेशान है। महंगाई का हम सबको पता है कि महंगाई का क्या हाल है। आवाम के साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। आउट ऑफ कंट्रोल कीमत से चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। हुकूमत नई कीमत का तयन नहीं कर पा रही और मार्केट में मनमाने निर्ख पर चीनी की फरोख्त जारी है। शुगर मिल्स मालिकान कीमत के तयन के हवाले से पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ना पहुंचे। देखिए जाहिद आबिद की रिपोर्ट। चीनी की कीमत में कमी ना हुई। मार्केट में चीनी कम अज कम 150 रुपए फी किलो है। शुगर मिल से चीनी का फी 100 किलो रेट 13,700 रुपए है। वफाकी हुकूमत ने चीनी की फी किलो कीमत 98 रुपए 82 पैसे मुकर्रर की थी। ताहम अदालती मामलात की वजह से कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वक्त मार्केट में चीनी की कोई सरकारी कीमत मुकर्रर नहीं। अवाम कहते हैं चीनी का रोना क्या रोए, हर चीज महंगी है। पहले 7 रुपए कटाया सी, 20 रुपए कट्ठे होते। आज मैं सुबह दी खबरां सुन रहे आलमी मार्केट 81 सेंट पेट्रोल डिगया रेट ते साडे पाकिस्तान दे पेट्रोल दा रेट वधाता है। चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, हुण 19 रुपए 50 में रोज हो गया। 19 रुपए 95 महंगा हो गया। गरीब की करेगा, होती क्या गरीब आदमी, ये मरने ही मरने जाते। दूसरी जानिब केन कमिश्नर पंजाब के शुगर मिल्स मालकान से मुज़ाकरात भी ना हो सके। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स मालकान का मौक़िफ़ है कि मामला अदालत में है, इसलिए मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो सकते। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स के वकील ने केन कमिश्नर ऑफिस को मिल्स मालकान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शुगर मिलर्स और हुकूमत के एक पेज पर ना होने की वजह से चीनी महंगी से महंगी होती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। अशिया ज़रूरिया के सरकारी निर्ख हवा हो गए। शहर में दूध और दही की मनमानी कीमतों फरोख्त जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का काम सिर्फ कीमतें मुकर्रर करना नहीं, इतलाक करवाना भी है। देखिए ज़ैन अली की रिपोर्ट।
महंगाई के सताए अवाम मुनाफा खोरों के शिकंजे में आ गए। दूध और दही के मनमाने निरखों पर फरोख्त जारी। दही की सरकारी कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में दही 200 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। दूध की सरकारी कीमत 140 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में दूध 170 से 180 रुपए फी किलो मिल रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब, मुनाफा खोरों को खुली छुट्टी मिल गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का काम सिर्फ कीमतें मुकर्रर करना नहीं, बल्कि कीमतों का इतलाक करवाना भी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी खाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। दूध दही बच्चों के लिए लेके जाना बहुत परेशानी का बायस बनता है। महंगाई हो चुकी है, ना बंदा दूध ले सकता है। बाजार से चाय पीने 50 का नोट, बच्चे कहते हैं जी हम तुम्हें दें या हम खाएं। दुकानदार कहते हैं सरकारी रेट पर दूध दही बेचना मुमकिन नहीं। हुकूमत के आए दिन एक्शन होते रहते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रही। 165 रुपये किलो दूध, 70 रुपये किलो हम परचेज कर रहे हैं, तो हम उसे दही में ऐसे सेल कैसे कर सकते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई बेकाबू हो रही है। लगता है कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। इम्पोर्टेड गंदम महंगी खरीद कर SOPs में तोसी करने का मामला है। महकमा खुराक ने नैब को वज़ीर आला के अहकाम पर रिकॉर्ड फराहम कर दिया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, जबकि बुज़दार दौर में इम्पोर्टेड गंदम खरीदारी और दीगर सूबों को बेचने का मामला है। दस्तावेज़ात के मुताबिक नैब की रिकॉर्ड तलबी पर महकमा खुराक ने नैब बुज़दार दौर में गंदम बरामद और दीगर सूबों को फराहमी का तमाम रिकॉर्ड दे दिया। जुलाई 2018 से अक्टूबर 2022 तक गंदम का तमाम रिकॉर्ड नैब को फराहम कर दिया गया, जबकि बुज़दार दौर में काबीना इजलासों के दौरान गंदम से मुतल्लिक फ़ैसलों के तमाम तफसीलात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट की जानिब से नैब को रिकॉर्ड फराहमी की इजाज़त वज़ीर आला से ली गई। वज़ीर आला हाउस से इजाज़त मिलने पर तमाम रिकॉर्ड तहकीकात के लिए नैब को फराहम किया गया। महंगाई की आउट ऑफ कंट्रोल लहर के बायस बाहमी मेल मुलाकातों का सिलसिला भी मुतासिर होने लगा है। पेट्रोल के निर्खों में होने वाले बेमुहाबा इजाफे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। बेशतर शहरियों ने सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद ही छोड़ दी है। देखिए सोहेल कैसर की रिपोर्ट। वो दिन हवा हुए जब बहाने बहाने से दोस्त यार और रिश्तेदार एक दूसरे के यहाँ कसरत से आया जाया करते थे कि अब तो 38% तक पहुँच जाने वाली महंगाई ने बेशतर अहबाब को सिर्फ दाल रोटी के चक्करों में ही उलझा कर रख दिया है। जब जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना ही मुश्किल तर हो जाए तो फिर समाजी राबते क्यों कर अपनी अहमियत बरकरार रख सकते हैं। कहीं जाना पड़ता तो किसी के घर कोई ना कोई तो चीज़ लेके जाना पड़ती है ना, वही बंदा कहाँ से खरीदे, क्योंकि उस महंगाई इतनी है, तनख्वाहें वही हैं लोगों की। जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेटिव्स हैं, हमारा तो अब उनके साथ कोई इंटरेक्शन रहा ही नहीं है इन पर्सन। हम वीडियो कॉल्स और इन पे ही गुजार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले तो महंगाई इतनी थी, बहुत ज़्यादा मुलाकात हो जाती थी। अब तो महंगाई की वजह से 10 चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, अपना घर देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये सूरत हाल है, महीने 2 महीने बाद किसी को कांटेक्ट करते हैं, साथ जाते हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी है। एक अंदाज़ा है कि एक दूसरे के साथ मेल मुलाकातों के सिलसिले में पहले की निस्बत करीब 30 से 35% तक कमी आ चुकी है। सितम बालाए सितम तो ये भी है कि आने वाले दिनों में दूर दूर तक सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान भी दिखाई नहीं दे रहा। माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक इस सूरत हाल के बाइस मुआशरे में रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ ख़तरनाक हैं। अब ये वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कहीं ना कहीं सफ़र ज़रूर करें और हर तबका इससे सफ़र कर रहा है। सिर्फ जो लोअर क्लास लोग हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि हर तरह के जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उन पे इसके नेगेटिव असरात आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो है उसने सिर्फ इंसान का पर्सनल सुकून ही नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि उनका सोशल सर्कल जो है उसको भी काफ़ी अपसेट किया। हकीकत तो ये भी है कि अब बेशतर अहबाब ने जैसे उम्मीद का दामन ही हाथ से छोड़ दिया हो। हद से बढ़ जाने वाली महंगाई ने तो जैसे हमारे सोशल सेटअप को भी तलपट करके रख दिया है कि कहाँ तो कसरत के साथ यारों दोस्तों की महफिलें जमा करती थीं, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना लगा रहता था, और अब इस महंगाई की वजह से ये सब भी ख्वाबो ख्याल बनता चला जा रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर। परवेज़ इलाही की गैर ज़ाहिर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और इन्हें हिफाजती ज़मानत देने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती अपील पर सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करने का हुक्म में तौसी कर दी है। देखिए मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट।
साबिक वज़ीर आला पंजाब चोई परवेलाई की गैर ज़ाहिर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और उन्हें हिफाजती जमानत देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील पर समाअत की। अपील में परवेलाई को गैर ज़ाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तार न करने के अदालती फैसले को चैलेंज किया गया है। परवेलाई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपील को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की। साबिक वज़ीर आला के वकील ने निशानदही कि हुकूमत ने अपील सिंगल बेंच के सामने दायर नहीं की, लिहाजा हुकूमती अपील को नाकाबिल समाअत करार दे। हुकूमती वकील ने बताया कि परवेलाई पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। सिंगल बेंच ने भी हकायक के बरक्स फैसला सुनाया है, लिहाजा अदालत सिंगल बेंच के फैसले को कालअदम करार दे। 2 रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील पर मजीद कार्रवाई 7 अगस्त तक मुलतवी करते हुए हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मोनिस इलाही की अहलिया का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और DG इमिग्रेशन को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी। मोनिस इलाही की अहलिया का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने तहरीम इलाही की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मोनिस इलाही की अहलिया ने अपना नाम ECL में शामिल करने के इकदाम को चैलेंज किया है। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील की जवाब दाखिल कराने की मोहलत देने की इस्तदा। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि तहरीम इलाही के पास दोहरी शहरियत है, इनके बच्चे बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। मोनिस इलाही की अहलिया का नाम सियासी बुनियादों पर ECL में शामिल किया गया, लिहाजा उसे खारिज करके दरखास्त गुजार को एक बार बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और DG इमिग्रेशन को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 8 अगस्त को होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि सज़ा से एक रात कबल मुझे साबिक चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के खिलाफ बयान न देने पर सख्त सज़ा देने की धमकी दी। आने वाले इलेक्शन को नवाज शरीफ लीड करेंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। देखिए ज़ैन अली की रिपोर्ट। तौहीन अदालत पर अपनी नाअहली के 5 साल मुकम्मल होने पर नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहने लगे 5 साल कब मुझे इस एक जुमले PCO के जजेस इंसाफ नहीं कर सकते की आड़ में नाअहल किया गया। पनामा केस के फैसले के खिलाफ बोलने पर मुझे नवाज शरीफ के साथ वफादारी की सजा दी गई। सजा देने से एक रात कबल मुझे मैसेज भिजवाया कि अगर मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान न दिया तो मुझे सख्त सजा दी जाएगी। सिर्फ नवाज शरीफ से वाबस्तगी मेरे लिए जुर्म बन गया। मेरे से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की, सिर्फ कोशिश नहीं की, अपील सुनने से एक रात पहले मुझे मैसेज भिजवाया। मैं दोबारा कह दूं, साकिब निसार ने, कि अगर तुमने मेरी मर्जी का बयान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ना दिया तो सुबह तुम्हें सजा कम नहीं होगी बल्कि सजा बढ़ाई जाएगी। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि आज मुल्क में डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं। उस वक्त नाअहलियां, रेफरेंस और तौहीन अदालत की कार्रवाइयां ना होती तो आज मुल्क जहां खड़ा है यहाँ ना होता। पनामा के नाम पर निहाल, दानियाल और तलाल के खिलाफ किए फैसलों की तलाफी और अपनी गलती तस्लीम की जाए। आज के हालात के जिम्मेदार वो फैसले हैं जो कि पनामा से शुरू हुए थे। ना आज रोटी 20 रुपए की होती, ना आज बिजली का यूनिट 50 रुपए का होता, ना आज डिफॉल्ट की बात होती और ना आज पाकिस्तान के ये हालात होते। इन हालात तक उन फैसलों ने पहुंचाया है। तलाल चौधरी ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा रिवायती चीफ जस्टिस नहीं होंगे। मीडिया को साकिब निसार से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये फैसले किसके कहने पर किए। आने वाले इलेक्शन को नवाज शरीफ लीड करेंगे और चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नई या पुरानी मरदमशुमारी के तहत आइंदा आम इंतखाबात के मामले पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत हों या पुरानी के तहत पार्टी तैयार है। मरदमशुमारी के मामले पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अहम तरीन मुशावरत हुई, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चाहती है कि इंतखाबात होने चाहिए, हम राय शुमारी चाहते हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पार्टी शुमारात में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की कसीर तादाद इंतखाबात में नई मरदमशुमारी के तहत हिस्सा लेने पर मुतफिक नजर आई है। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाद PIPP में भी नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन में जाने का मौक़िफ़ रखती है।
لاہور میں ایک اور انڈر پاس کا افتتاح سمناباد انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے منصوبے کو شہریوں کے لیے بڑی سہولت قرار دے دیا۔ دیکھیں زین العابدین کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سمناباد انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ روزانہ تقریباً 2 لاکھ گاڑیوں کو آمد و رفت کی سہولت ملے گی۔ انڈر پاس 440 میٹر طویل اور 2 لین پر مشتمل ہے۔ منصوبے پر 2 ارب سے زائد لاگت آئی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، انڈر پاس کے ڈیزائن میں تبدیلی کر کے 78 قیمتی درختوں کو بچایا گیا۔ گرین بیلٹ پر 300 نئے پودے لگائے گئے۔ پورے ایل ڈی اے کا اسٹاف جنہوں نے بڑی محنت کی اس کو کرنے میں، آل دو ذرا یہ پروجیکٹ تھوڑا سا پھنس گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کلیئر ہو گیا ہے۔ ایک اور چیز کا کریڈٹ جاتا ہے ایل ڈی اے کو کہ انہوں نے 78 ٹریز تھے جو اس کی زد میں آنے تھے، وہ انہوں نے ری ڈیزائن کر کے سارے کے سارے وہ بچائے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا۔ محسن نقوی نے دریاؤں کے بیڈ کے اندر موجود آبادیوں کی حفاظت کے لیے پیشگی انخلا یقینی بنانے اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو مسلسل مانیٹر کرنے کی ہدایت کی۔ سرکار غیر سنجیدہ شہر کے مکین رنجیدہ۔ لاہور میں 11 پارکنگ پلازے بنانے کا ٹاسک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ مین شاہراہوں اور سروس لائنوں پر سینکڑوں پارکنگ سائٹس نے ٹریفک کے مسائل بڑھا دیے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ پارکنگ پلازوں پر تمام میٹنگز پلاننگ تک ہی محدود۔ 5 برس سے اپنی تکمیل کے منتظر 11 پارکنگ پلازے قصہ پارینہ بن گئے۔ پارکنگ پلازوں کی لاگت 5 برس میں 3 ارب سے بڑھ کر 20 ارب تک جا پہنچی۔ پارکنگ اور ٹریفک کی سست روی سے شہری اذیت کا شکار ہو گئے۔ داتا دربار کے قریب 3 کنال 6 مرلے پر 10 مرلہ پارکنگ پلازے کا PC1 فائلوں تک محدود۔ شیراں والا گیٹ پر 20 کنال اراضی پر 2 منزلہ پارکنگ پلازہ تعمیر کرنے کا نیا PC1 تیار۔ ہار روڈ پر 2 کنال 7 مرلے کی اراضی پر 7 منزلہ پارکنگ پلازہ کی بھی تاحال منظوری نہ ہو سکی۔ برکت مارکیٹ کے ساتھ 7 کنال 4 مرلہ اراضی پر 2 منزلہ پلازہ تعمیر کا اثر نو PC1 فائلوں میں بند۔ پچھڑا فیروزپور روڈ پر 4 کنال 3 مرلہ اراضی پر 2 منزلہ پارکنگ پلازہ کا اثر نو PC1 تیار کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے قریب 8 کنال 4 مرلہ کے 4 منزلہ پلازہ میں 512 گاڑیوں کی گنجائش رکھی گئی۔ لیلا گنبد فوارہ چوک کا اثر نو PC1 بھی تیار کر کے فائلوں میں بند کر دیا گیا۔ ورکنگ پیپرز کے مطابق 5 پلازے MCL، 2 پلازے اوقاف کی زمین پر بننا ہے، 2 پارکنگز PHA، 1 LDA اور 1 لیکویڈیشن بورڈ کی اراضی پر بننے تھے۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ٹریفک کی صورتحال کے پیش نظر پلازوں کی تعمیر ناگزیر ہے۔ پارکنگ پلازوں کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ پارکنگ پلازوں کی تعمیر کے لیے نگران وزیر اعلیٰ سے محکمانہ پالیسی پر بات چیت چل رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل نو کر دی گئی۔ CEO لی پارکنگ کمپنی کا بڑا فیصلہ، 27 فیلڈ سپروائزر کی پوسٹیں ختم کر دی۔ دیکھیں عمران اکبر کی رپورٹ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال فیروز نے 27 سپروائزرز کو نوکری سے فارغ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ 216 پارکنگ سائٹس سپروائزر سے واپس لے لی گئیں۔ پارکنگ سائٹس 7 اسسٹنٹ مینیجرز کے حوالے کر دی گئیں۔ امین بٹ، مشتاق حسین، فخر حسین اور ندیم ساکی کو سپروائزر کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ احمد سیٹھ، مدثر علی، نجم نثار اور حافظ یوسف بھی نوکری سے فارغ۔ ملک عابد، حافظ حمزہ، محمد اعظم اور محمد عثمان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اویس ریاض، عارف علی، عمیر نذیر، سہیل تبسم بھی نوکری پر نہیں رہے۔ حمید اللہ بلوچ، معیز بٹ، فیاض جٹ اور عدیل بٹ بھی فارغ ہونے والوں میں شامل۔ محمد عادل، ملک بشارت، اویس بخاری کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ فیلڈ سپروائزرز کو پارکنگ بکس اور سروس کارڈ آفس جمع کروانے کے احکامات جاری۔ CEO پارکنگ کمپنی بلال فیروز کا کہنا ہے کہ ملازمین ڈیلی ویجز کی بنیاد پر کام کر رہے تھے۔ پارکنگ ورکرز کی حیثیت سے دوبارہ نوکری دینے کی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اورنج لائن ٹرین اور اسٹیشن پر بغیر اجازت فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بغیر اجازت تصویر اور ویڈیوز بنانے والوں کو 1 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ ہوگا۔ اورنج ٹرین اور اسٹیشن پر عکس بندی کی فیس بھی 2 لاکھ روپے رکھ دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 26 اکتوبر 2020 کو اورینٹ ٹرین فعال کرنے کے بعد محکمہ خزانہ اور پنجاب کابینہ کی جانب سے اورینٹ ٹرین کے مسلسل خسارے میں چلنے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ ٹرین کو چلانے کے لیے آنے والے اخراجات کی وجہ سے حکومت کو سبسڈی میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اورینٹ لائن ٹرین منصوبے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا 80% سے زائد بجٹ اس منصوبے پر خرچ ہونے لگا۔ ریونیو میں اضافے اور غیر ضروری ویڈیوز بنانے سے روکنے کے لیے میس ٹرانزٹ اتھارٹی
अथॉरिटी ने पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन और स्टेशन पर बगैर इजाजत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अब महंगी पड़ सकती है। बगैर इजाजत तस्वीर और वीडियोस बनाने वालों को 1 लाख रुपए से जायद जुर्माना होगा। मेट्रो या ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर, बाहर या स्टेशन के अंदर या बाहर किसी किस्म की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अब इदारे की इजाजत के बगैर नहीं होगी। ऑरेंज ट्रेन पर अक्सबंदी की फीस 2 लाख से शुरू होगी। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने तमाम स्टेशन की कैटेगरी बना दी। ए कैटेगरी के स्टेशन पर 2 लाख रुपए प्लस टैक्स देना होगा। बी कैटेगरी के स्टेशन पर 1.5 लाख प्लस, जबकि सी कैटेगरी के स्टेशन पर 1 लाख रुपए प्लस टैक्स देना होगा। तस्वीर या वीडियो चाहे स्टेशन की हो या अपनी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हो या मीडिया के लिए, पहले अपने इदारे के लेटर हेड पर दरखास्त लिखकर और फीस जमा करा के इजाजत लेना होगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस स्टेशन के सतूनों को इश्तिहारों के लिए ठेके पर देकर इससे रेवेन्यू पैदा करने का प्लान भी तैयार कर लिया गया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम के गैर मुल्की कोचेस तब्दील नहीं किए जाएंगे। पीसीबी ने फैसला कर लिया। पीसीबी के मुताबिक रवां साल वर्ल्ड कप तक गैर मुल्की कोचेस को बरकरार रखा जाएगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के मशीर मिसबाहुल हक कहते हैं कि अगरचा मैं गैर मुल्की कोचेस के खिलाफ हूँ, मगर वर्ल्ड कप से फौरी कबल कोचेस को तब्दील करना टीम के लिए ठीक नहीं होगा। वर्ल्ड कप के बाद उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेकर उनके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। मुल्क मकी अत्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न वर्ल्ड कप के दौरान टीम के साथ ही रहेंगे। मिसबाहुल हक ने कहा कि नजम सेठी ने गलत फैसला किया, मगर अभी वर्ल्ड कप से कबल कोचेस को तब्दील करना दानिशमंदी नहीं। मशीर खेल वहाब रियाज मैदान में सरगर्म। वहाब रियाज ने जेम्स हॉल और न्यूट्रिशन और स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया है। साथ ही पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा भी किया है। देखिए मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के मशीर खेल वहाब रियाज ने जिम्नेजियम हॉल में न्यूट्रिशन और स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। डीजी वेलफेयर मुदस्सर मलिक भी मशीर खेल के साथ थे। मशीर खेल ने जिम्नेजियम हॉल में जारी समर कैंप का दौरा किया। कहने लगे बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे वो सेहतमंद रहें। न्यूट्रिशन से आगाही खेल में अहम किरदार अदा करते हैं। पहला मोटिव था वो ये था कि यहाँ पे बच्चों को ला के उनको एक ऐसी इन्वायरमेंट दे जिधर वो आके खेल सके, जिधर बच्चों को जो है वो अच्छा जो है एक एटमॉस्फेयर सा मिले, जिधर वो आके खेले और आके एक्टिव रहे। कल को इन्हीं बच्चों में से आगे फर्दर कोई बच्चा जो इसको एज अ प्रोफेशनल लेना चाहता है वो आगे जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। निगरान मुशीर खेल वहाब रियाज ने फूड अथॉरिटी के हेड ऑफिस का भी दौरा किया। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर से मुलाकात करके फूड सप्लीमेंट के कानून और टेस्टिंग सलाहियत पर तफसीली ब्रीफिंग ली। पंजाब फूड अथॉरिटी खिलाड़ियों के जेर इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट टेस्ट करेगी। मुशीर खेल वहाब रियाज का कहना था कि गैर मेयारी फूड सप्लीमेंट के इस्तेमाल से हर साल बहुत से अच्छे खिलाड़ी मुतासिर होते हैं। फूड सप्लीमेंट रेगुलेट और आगाही न होने से खिलाड़ियों को आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। नौजवान खिलाड़ियों की आगाही के लिए फूड अथॉरिटी से मदद लेंगे। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि फूड सप्लीमेंट को रेगुलेट करने के लिए कानून और टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी तैयार है। दूध में मिलावट के खात्मे के लिए मिल्क डायरेक्टरेट कायम कर दिया है। फूड पैकेजिंग और प्रोडक्शन एरिया हाइजीन के हवाले से भी कानून साजी कर रहे हैं। मैट्रिक के सालाना नताइज में ख़राब कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रिकॉर्ड जमा करने के अहकाम दे दिए। मुतल्लिका तालीमी बोर्ड से कम नताइज वाले स्कूल सरबराहों और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में रवां साल कामयाबी का तनासुब 74% से ज़्यादा रहा। 74% से कम नताइज देने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई का हतमी फैसला सेक्रेटरी हायर एजुकेशन करेंगे। बरसाती पानी के निकास के लिए तामीर की गई ड्रेन 11 साल बाद भी गैर फाल रही और गार्डन टाउन का गार्डन ब्लॉक और अली पार्क हर बारिश में डूबना मामूल बन गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने फिरोजपुर रोड और गार्डन टाउन को डूबने से बचाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत फिरोजपुर रोड पर बरलबे सड़क बरसाती ड्रेन बिछाई गई। महकमा CNW ने ड्रेन तामीर करके इसे लावारिस छोड़ दिया। वासा ने 11 साल बाद भी बरसाती नाले को अपनी तहवील में न लिया। मंसूबे पर 11 साल पहले 5 करोड़ लागत आई थी। बरसाती पानी के निकास के लिए CNW ने वाटर टैंक भी तामीर किया। पानी के निकास के लिए 2 सबमर्सिबल पंप भी लगाए गए।
पंप चलाने के लिए ट्रांसफार्मर और 100 kVA का जनरेटर भी रखा गया। जनरेटर के लिए बनाए गए कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया गया, जिसके बाहर गंदगी का बसेरा है। बरसाती नाला बंद होने की वजह से गार्डन टाउन का गार्डन ब्लॉक और अली ब्लॉक बारिशी पानी में डूब जाता है। फिरोजपुर रोड पर बिछाई गई ड्रेन की भी हालत जार हो चुकी है। ड्रेन की देखभाल न होने की वजह से मैनहोल कवर्स भी गायब हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ड्रेन गैर फाल है, जिसकी वजह से 1 फीट तक बारिशी पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके इसको बनवाया है, इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद इसकी कम से कम 2 से सवा 2 करोड़ रुपए की लागत आई, और जब ये ऑपरेशनल हो गया तो उनके पास वासा और कुछ और डिपार्टमेंट जिसने इनको टेक ओवर करना था, वो टेक ओवर टेकिंग ओवर प्रॉपर नहीं हो सकी, और आज तक ये नहीं चल पाया। जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, और सारा ये फिरोजपुर रोड का पानी जो है हमारी तरफ आता है, और यहाँ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दरिया बह रहा है, और निकासी का तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है। हमारे घरों के अंदर पानी घुस जाता है, गटर हमारे उबलने लग जाते हैं, और ड्रेन यहाँ का सिस्टम जो है बिल्कुल बंद है। वासा इंतजामिया का कहना है कि ड्रेन CNW ने तामीर की और अभी तक वासा के हवाले नहीं की गई। कैमरामैन उम्मेर रईस के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला कहते हैं कि चिड़ियाघर में ऐसी सहूलत कायम करना है जिसमें तफरीह के साथ साथ बच्चों को तालीम भी मिले। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे निगरानी लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के हवाले से इजलास। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने का फैसला। दोनों जगहों पर सिंगापुर के चिड़ियाघरों की तर्ज पर सहूलियात फराहम की जाएंगी, जो अपने गैर मामूली ज़ूलॉजिकल मेयार के लिए पहचाने जाते हैं। चिड़ियाघर और सफारी पार्क के लिए जानवरों की नई नस्लें लाई जाएंगी। ज़्यादातर पिंजरों में रवायती दीवारों को शीशे के ढांचे के साथ तब्दील करने की हदायत भी जारी। इससे शहरियों को जानवरों के करीब जाकर तजर्बे करने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघरों को दोबारा डिज़ाइन करने का टास्क दे दिया। चिड़ियाघरों की आमदन का सही तयन करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। चिड़ियाघरों में वॉकिंग पार्क व प्ले एरिया बनाने और सफारी ट्रेन चलाने की तजवीज़ भी दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि तब्दीलियों का मकसद एक ऐसी सहूलत फराहम करना है जिससे तफरीह के साथ बच्चों को तालीम भी मिले। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।